Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now we'll start lesson number 4, division and unitary method. So before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 4, division and unitary method. But before starting our today's topic, before starting this lesson, first we will see what you had learned in this lesson before the exam. So now all of you look at in this lesson. So first we had learned the recall. In the recall exercise, we had learned the division means equal distribution or equal sharing of things. Division means we are divide any things in the equally shares. For example, you have a 45 chocolates and you have a 5 friends. Now you want to give chocolate 45 chocolate you want to give in the 5 friend. So when we are divide 45 divided by 5, so we will get 9. So means we will giving 9 chocolate for each friend. So now look at here, that 45 is known as the dividend. 45 is known as the dividend. The number 45 to be a divide is called the dividend. This is called the dividend. The number 5 by which the dividend is divisor is called the divisor. Which number we are divide by a dividend, this is called the divisor. And whatever the answer we are getting, this is called the quotient. जो हमें आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन. जो नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड. एंड जो नंबर हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर. एंड आफ्टर द डिवाइड व्हाट एवर द इज बैलेंस इज कॉल्ड द रिमाइंडर. जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर. आफ्टर द डन आवर डिवीजन, नाउ वी वांट टू चेक अवर डिवीजन. हमारा डिवीजन हो गया है, अभी हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं. सो फर्स्ट चेक दैट. फर्स्ट हमें चेक करना है रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर. जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज लेस होना चाहिए डिवाइजर से. यहाँ पे देखो, जो डिवाइजर कितना है 5 है और क्वेश्चन कितना है 9 है. क्या है? डिवाइजर 5 है, डिवाइजर 5 है और डिवाइजर 5 है और हमारा रिमाइंडर कितना है 3 है. रिमाइंडर कितना है 3 है. ये क्वेश्चन है. 3 क्या है? हमारा रिमाइंडर है. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर. जो हमारा रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए डिवाइजर से. सो 3 इज द लेस देन 5. 3 इज लेस देन 5. देन चेक दैट द क्वेश्चन. फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर. Whatever the question, 9 multiply by 5. 9 multiply by 5. 9 multiply by 5, 45. And then add the remainder. अगर रिमाइंडर 0 है तो 0 ऐड करेंगे. यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना है 3 है. 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45. 45 में अगर 3 मिला देंगे तो 48 आता है. इक्वल टू डिविडेंड. इक्वल टू डिविडेंड देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 इक्वल टू 48. Then after we had done the recall exercise. In the recall exercise we had done divide. You can divide the quickly if you are remember your table. ये जो है ये हमें क्विकली सॉल्व करना है. अगर इसके लिए हमें क्या लर्न होना चाहिए? टेबल लर्न होना चाहिए. एवरीवन नीड टू लर्न टेबल अप टू 9. एटलीस्ट 9 तक तो सबको टेबल आना चाहिए. अप टू 20 इज द कंपल्सरी, बट देन आल्सो 9 तक तो कंपल्सरी है. अगर आपको 9 तक टेबल आते हैं तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ 15 डिवाइडेड बाय 3. 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5 बिकॉज 15 is present in the 3 table in the place of 5. So like that we had done that all example. Then 17, 18, 19 and 20 ये मैंने आपको होमवर्क दिया था. Then question number B, filling the blanks to complete the sum. हमें कंप्लीट करना था सम को. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे जगह यहाँ पे नंबर्स दिए थे, हमें
पुट करके उसको लिखना। जैसे 97 डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है। सो नाउ 4 के टेबल में 2 वाले प्लेस में क्या आता है, 8 आता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। नाउ ब्रिंग डाउन द 7। नाउ 17 is present in the 4 tables. Know what is the nearest value? 16. So 17 minus 16 equal to 4 and 16 is placed of the 4. So we are getting the question is 24 and remainder equal to 1. Question कितना मिल गया है, 24 and remainder equal to 1. Then that also same. Okay, now here is the 3-digit number and this one is the 1-digit number. 324 divided by 6. Now 32. First we will see that 3 and 6. 3 is the less than 6. ये जो 3 है ये 6 से छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या लेंगे, 32 लेंगे। और यहाँ पे जो ये प्लेस है यहाँ पे हम एम्प्टी रखेंगे। क्यों एम्प्टी रख रहे, क्योंकि हम पूरा 32 ले रहे हैं। नाउ 32 इज प्रेजेंट इन द 6 टेबल। नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू इज द 30। 30 कौन से प्लेस पे है, 5। सो 32 माइनस 32। Now bring down the 4. 24 is present in the 6 table. Yes, in the place of 4. So 24 minus 24, 0. So quotient equal to 24 and remainder equal to 0. Quotient equal to 24 and remainder equal to 0. So these also we had done in our last class. Then after question number C, divide, these also we had done. Now look at here one example we will see. Now this is the example number 6. हमने एग्जाम्पल नंबर 13 तक किया, सॉरी एग्जाम्पल 4, 5, 11, 30, 12 एंड 13 ये होमवर्क दिए थे और बाकी के एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। तो उसमें से हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। 295 डिवाइडेड बाय 7। नाउ 2 इज द लेस देन 7। 2 7 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, 29। नाउ 29 इज प्रेजेंट इन द 7 टेबल्स। नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 28। 28 प्लेस ऑफ द 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। 29 माइनस 28 कर दिया। नाउ 29 माइनस 28, 1। नाउ ब्रिंग डाउन द 5, 15। Now 7 divided by 15. 15 is present in the 7 tables. No, what is the nearest value, 14. 14 is the place of 2. So we'll write here 2 and 15 minus 14 equal to 1. So question equal to 42 and remainder equal to 1. So like that we had solved that question number C from the recall exercise. Then after I had done the property of division. So how many property of division, 4 property of division. So now look at here first property of the division. 2 division fact can be derived from the 1 multiplication fact. 2 डिवीजन फैक्ट्स मतलब 2 डिवीजन ये डिराइव होते हैं किससे, 1 मल्टीप्लीकेशन से। 1 मल्टीप्लीकेशन मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 42। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 42। अगर हम 42 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, देखो 42 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है 6 वो आंसर मिल जाएगा, और 42 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये दूसरा नंबर क्या, 7, वो आंसर मिल जाएगा। So this is property number 1. Then property number 2. If a number is divided by 1, the answer is number itself number. When we are divide 1 in any number, so we will get itself number. अगर हम 1 को क्या करेंगे, किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें इटसेल्फ नंबर मिलेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में जब हम 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इटसेल्फ आंसर मिलता है। सेम अगर डिवीजन में भी हम 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें वो इटसेल्फ आंसर मिल जाता है। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1. When we are divide itself number by divide, so we'll get answer is the 1. For example, now look at here 10 divided by 10, so we'll get answer is the 1. जब हम itself number के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते तो हमें आंसर कितना मिलता है, 1. For example
कैसे 1 मिलता है, जैसे 10 है, 10 के टेबल में 10 कौन से प्लेस पे आता है, 1 ही प्लेस पे आता है। अगेन 324 को अगर 324 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 1, क्योंकि 324 के टेबल में 1 वाले प्लेस में होता है, 1 वाले प्लेस में भी होता है। और हमारा डिवीजन का फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम जो हमारा क्या है आंसर है, आंसर के साथ अगर हम यहाँ पे जो 2 नंबर है मल्टीप्लिकेशन के, जैसे ये वाले 2 मल्टीप्लिकेशन के नंबर है, वो जो अगर आंसर के साथ हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमें वो नेक्स्ट वाला आंसर मिलता है। मतलब अगर 324 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 324 मिलेगा, 324 को 324 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाला आंसर 324 ही मिल जाएगा। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ द जीरो इज डिवाइड by a number, the answer is the 0. When we are divide 0 in any number, so we will get answer is the 0. Like that in the multiplication. मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते थे तो हमें आंसर कितना मिलता था, 0 मिलता था। सेम डिवीजन में भी अगर हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। Then after we had done the exercise 4.1. 4.1 में solve the using the property of division. यहाँ पे हमें property of division को use करके हमें solve करना था। So now look at here. Example number A, 896 divided by 1. So this is property number 3. When we are divided by 1 in any number, so we will get itself number. So we will get answer 896. Then 4320 divided by 4320. So when we are divide the itself number, so we will get answer is the 1. जब हम itself नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 1 मिलता है। नाउ 0 डिवाइडेड बाय 8999, so this is the property number 4. When we are divided by 0 in any number, we will get answer is the 0. Then D, E and F ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। Then 2, 3 ये हमने सॉल्व किया था। So now look at here example number 2. 24 divided by 4 equal to 4 divided by 24. Is it correct? ये करेक्ट है? नहीं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो ये करेक्ट होता। मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर की प्लेस चेंज हो जाती है तो हमें आंसर वही मिलता है, लेकिन डिवीजन में अगर उसकी प्लेस चेंज हो जाती है तो आंसर भी चेंज होता है। इसलिए 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 24 इज नॉट इक्वल, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। Then third number, if 7 multiply by 38, we will get 266. अगर 266 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 38, एंड 266 को 38 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 7 मिलता है। Then write the 2 division fact from the 4 multiply by 19 equal to 76. Now 76 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 19, एंड 76 को हम 19 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलता है 4. So this is the question number 2, 3, 4. Then 5 and 4 both are the same, so ये मैंने आपको होमवर्क दिया था. Then after we had done the division of the 4-digit number by 1-digit number. Division of 4-digit number by 1-digit number. This is similar to 3-digit number, 2-digit number. ये सेम ही है जैसे हम 3-digit, 2-digit को करते हैं, ठीक है. So now look at here exercise 4.2. Exercise 4.2 में से हमने ये 3 एग्जाम्पल किए थे, उसमें से हम ये सेकंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या दिए थी, जगह एम्प्टी थी, हमें यहाँ पे पुट करना था. यहाँ पे 16 दिया था, तो 16 4 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है, 16. हम 16 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 16 में से 16 माइनस होगा तभी 0 होगा. तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 4 16 और यहाँ पे 0. और यहाँ पे आंसर में यहाँ पे 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0. नाउ ब्रिंग आउट द 0.
नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे रिमाइंडर में कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ पे आंसर में 2 लिखा है और रिमाइंडर में कितना है, 1 लिखा है। तो 4 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे क्या आता है, 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है, और हमें रिमाइंडर 1 चाहिए। तो 8 कौन से नंबर के साथ माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तब भी हमें आंसर 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। सो 1609 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है, 402, एंड रिमाइंडर इक्वल टू 1। रिमाइंडर इक्वल टू 1। Then after we had done the exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर बी। सो 13 से लेकर 20 तक मैंने होमवर्क दिया था, उसमें से हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। सो दिस इज एक्सरसाइज 4.2, उसमें से हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 6 इज द 5932 डिवाइडेड बाय 7। 5932 डिवाइडेड बाय 7 है। सो नाउ 7 एंड 5 ये छोटा है 7 से, तो हम 59 लेंगे, ठीक है। नाउ 59 इज प्रेजेंट इन द 7 टेबल, नो। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 56। 56 is the place of 8, so we'll write here 8, and 59 minus 56, 3. Now 3, bring out 3, 33. 33 is present in the 7 table, no. What is the nearest value, 28. 28 is the place of 4, so we'll write here 4, and 33 minus 28, 5. Now bring out the 2. 52. 52 is present in the 7 table, no. What is the nearest value, 49. 49 is the place of the 3, 49 is the place of 7, so we'll write here 7, and 42 minus 49 we will get 3. So question equal to 847 and remainder equal to 3. So this is our exercise 4.2. Then now look at here. Now we'll start our today's topic. सो यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक दी है, जो हम कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, लुक एट द डिवीजन सम 5310 डिवाइडेड बाय 5 डन बाय 2 स्टूडेंट्स, विच इज करेक्ट, कैन यू पॉइंट आउट ऑफ द मिस्टेक। तो ये आपको होमवर्क ही ऐसे समझ लो, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है, 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये सम को सॉल्व किया है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। नाउ लुक एट हियर, डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। क्या करना है, डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। सो नाउ हियर इज द एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन बाय राउंडिंग, मतलब हमें राउंडिंग नंबर करके इसको आंसर निकालना है। तो हमने लास्ट लेसन में ही पढ़ा था राउंडिंग कैसे करते हैं। सो नाउ लुक एट, टू डिवाइडेड बाय अ 2 डिजिट नंबर, इट इज यूजफुल टू अ फर्स्ट एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग। जो हमारा क्वेश्चन है उसको राउंडिंग में करेंगे, एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन बाय द राउंडिंग। नाउ लुक एट एस्टिमेटिंग बाय द क्वेश्चन फॉर अ 73 डिवाइडेड बाय 22, राउंडिंग द नियरेस्ट 10। हम क्या करेंगे, राउंडिंग करेंगे नियरेस्ट 10 से। क्या करेंगे, नियरेस्ट 10 से करेंगे। सो नाउ लुक एट हियर, राउंडेड नियरेस्ट 10 से कर रहे हैं, 73 डिवाइडेड बाय 22, 73 डिवाइडेड बाय 22. So 73 is the nearest value of 70 and 22 is nearest value of 20. Now 70 divided by 20 is equal to 7 divided by 2. यहाँ पे जो 0 है वो हमने कट कर दिया है, तो 7 divided by 2. Therefore estimated quotient equal to 3. Estimated quotient कितना मिल गया है, 3 मिल गया। Now estimating the quotient 468 divided by 27. Round the 468 nearest 100. अगर यहाँ पे देखो डिवीजन के जो एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे अगर हमें 2 डिजिट नंबर दिख रहा है तो उसको हम राउंडेड कर देंगे टेंस में। अगर हमें 3 डिजिट नंबर दिख रहा है तो उसको हम राउंडेड कर देंगे, किस में राउंडेड कर देंगे, हमें 100 में कर देंगे। अगर 4 डिजिट नंबर है तो उसको राउंडेड कर देंगे हम 1000 में।
यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम राउंडेड कर देंगे नियरेस्ट 10 में। अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसको राउंडेड कर देंगे हम किसमें, 100 में। और अगर 4 डिजिट नंबर है तो उसको हम राउंडेड कर देंगे 1000 के नियरेस्ट वैल्यू। सो 468 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 400 एंड 500 के बीच में आता है। लेकिन जैसे 450 स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद के जो भी नंबर है वो 500 के नियरेस्ट है, तो ये 500 की नियरेस्ट है। और 27 ये नियरेस्ट आएगा, उसको 10 की नियरेस्ट निकालेंगे, वो नियरेस्ट आ जाएगा 30 के। सो नाउ इसमें से 10 और इसमें से 10 कट हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 3। 50 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, क्वेश्चन 16 मिलेगा और 2 हमें रिमाइंडर मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा। So now look at here all of you in the exercise 4.3. So in the exercise 4.2, 4.3 same like that example. So now we will solve this. So now all of you look at here. So example number first, 64 divided by 12. 64 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। अभी 64 और 12 ये दोनों भी क्या हैं, 2 डिजिट वाले हैं। मैंने अभी बताया था कि 2 डिजिट है तो उसको नियरेस्ट 10 करेंगे, 3 है तो इसको नियरेस्ट 100 करेंगे और 4 है तो उसको 1000 करेंगे। सो 64 और 12 ये दोनों भी क्या है, 2 डिजिट है, इसको तो हम राउंडेड 10 करेंगे, राउंडेड टू द नियरेस्ट, किसके करेंगे, 10 के नियरेस्ट करेंगे, ठीक है। सो 64 एंड यहाँ पे 12। 64 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में आता है। लेकिन यहाँ पे 4 है तो 65 के बाद नंबर होता तो वो 70 के नियरेस्ट है, लेकिन वो 64 है तो ये राउंडेड वैल्यू है 60 के। नाउ 12 किसके नियरेस्ट होता है, 10 और 20 के बीच में आता है, लेकिन 12 जो है ये किसके नियरेस्ट है, 10 के नियरेस्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 को हम डिवाइड करेंगे, 60 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 60 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। नाउ 0 0 हम क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे, क्या करेंगे, कैंसल करेंगे, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1। ये हमने क्या किया है, 0 0 कैंसिल किया, क्योंकि यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 60 डिवाइडेड बाय 10 ये इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय 1। अगर हम यहाँ पे करके देखेंगे, 1 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे। So this is the property number 2. When we are divided by 1 in any number, so we will get itself number. So we will get here is the 6 and 6 minus 6 0. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन कितना मिल गया है, 6 मिल गया है। क्वेश्चन कितना मिल गया है, 6 मिल गया है। So therefore यहाँ पे हम लिख देंगे, therefore the estimate quotient is कितना मिल गया है, 6। हमें एस्टिमेट क्वेश्चन कितना मिल गया है, 6 मिल गया है। यहाँ पे हम एक्चुअल जो वैल्यू है उसको हमें नहीं डिवाइड करना है, सिर्फ इसको राउंडेड करके उसको ही हमें डिवाइड करना है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. Now example number 2, 96 डिवाइडेड बाय 18। सो उसको भी हम क्या करेंगे, राउंडेड कर देंगे, राउंडेड टू द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट करेंगे, नियरेस्ट 10, ठीक है। नाउ 96 एंड 18, 96 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में आता है। सो 90 ये
किसके नियरेस्ट होगा 100 का। अभी ये 3 डिजिट का हो गया। क्यों 3 डिजिट का हो गया? क्योंकि 96 ये 90 और 100 ये दोनों के बीच में आता है, लेकिन ये 90 जो है वो किसके नियरेस्ट है 100 के। नाउ 18 टू कौन से नंबर के बीच में आता है? 18 ये नंबर 10 और 20 के बीच में आता है, लेकिन ये किसके नियरेस्ट है? 20 के नियरेस्ट है। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू अभी यहाँ पे मैं 0 कैंसिल नहीं करूंगी, यहाँ पे 0 कैंसिल होता है तो पेंसिल से करती हूँ। देखो इसमें से 10 और इसमें से 10, यहाँ पे 10 है, 110 हम कैंसिल कर रहे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ का 10 यहाँ एक ही 0, अगर यहाँ पे अगर 20 के जगह पे 200 होता तो यहाँ पे दोनों भी 0 कैंसिल होते, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 है तो हम 10 कैंसिल किया तो 10 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवीजन करके देखेंगे। Now 1 is the less than 2, so we'll take 10. Now 10 is present in the two tables, yes, in the place of 5, so we'll write here 5 and 10 minus 10 0. So हमें estimate जो quotient है वो कितना मिल गया है 5 मिल गया। Therefore the estimate quotient इज कितना मिल गया है 5। हमें जो एस्टीमेट क्वेश्चन है वो कितना मिल गया है 5 मिल गया। कितना मिल गया है 5 मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज द होमवर्क फॉर यू बिकॉज दीज आर द 2 डिजिट। ये सेम इसके ही तरह है, तो ये आपको होमवर्क है, आपको ये करके देखना है। एंड ऑल ऑफ यू नीड टू सेंड होमवर्क इन माई नंबर। आपको सबको कंपलसरी है, आपको होमवर्क सेंड करना है। एक तो आप गूगल क्लासरूम में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल क्लास में नहीं कर सक रहे हो तो आपको व्हाट्सएप पे करना है। सो नाउ 4th नंबर, ठीक है, वी विल सॉल्व नाउ 4th नंबर। 4th नंबर इज 286 डिवाइडेड बाय 33। 286 divided by 33. Now look at here 286, this is the 3 digit number। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम राउंडेड करेंगे 100 से, और अगर वो नियरेस्ट है, अगर 2 डिजिट है तो उसको हम राउंडेड करेंगे 2 डिजिट से, मतलब नियरेस्ट 10 के। तो ये जो 33 है इसको हम राउंडेड करेंगे नियरेस्ट 10, और 286 ये 3 डिजिट का है तो उसको हम राउंडेड करेंगे 100 के। सो यहाँ पे लिख देंगे हम राउंडेड 286 टू द नियरेस्ट 100। इसको क्या करेंगे नियरेस्ट 100 करेंगे। एंड 33 टू द नियरेस्ट किसके करेंगे 10 के कर देंगे, उसको नियरेस्ट 10 के कर देंगे। नाउ 286 एंड 33, सो 286 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है राउंडेड 100 के। सो 200 एंड 300 के बीच में आता है। ये जो नंबर है 286 ये 200 एंड 300 के बीच में आता है। सो 86 से 250 के बाद जो भी नंबर होगा वो नियरेस्ट होगा 300 का, तो इसका राउंडेड वैल्यू कितना हो जाएगा 300। एंड 33 हमें इसको नियरेस्ट 10 करना है। सो 33 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है 30 एंड 40 के, लेकिन 33 ये किसके नियरेस्ट आएगा 30, ये किसके नियरेस्ट आएगा 30। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 300 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे देखो 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 डिवाइडेड बाय 3।
30 डिवाइडेड बाय 3। अभी हम दोनों को अगर डिवाइड करके देखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 3, नाउ 3 ones are 3 and when we are divided by 0 so we'll get answer is the 0. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 10 मिल गया है। 33 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है 10। सो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिल गया है 10। सो यहाँ पे लिखेंगे हम therefore the estimated quotient is कितना मिल गया हमें 10 मिल गया। एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना मिल गया है 10 मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 5 we will see in our next period. So we had done up to example number 4. Example number 3, this is the homework for you. Example number 5 we will see from the 5 we will see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.